My dear friends, welcome to Matrix Science Academy. So, we have started with the one-shot revision lectures for the subject Information Technology. So, in this video, we are going to start with the second chapter, that is Introduction to the Search Engine Optimization (SEO). So, Introduction to the SEO chapter is completely a theoretical chapter, a very easy chapter, and also a very interesting chapter too. So, in the one-shot revision lectures, now we are going to start this chapter and let's start discussing this chapter more in detail. So previously, already I have uploaded a video on chapter 1. So it is recommended first to watch chapter 1. After chapter 1, then the chapter 2 comes. So directly if you are jumping on chapter 2, then that is not a right approach. First you must know the chapter 1, and also the chapter 1 has more weightage than chapter 2. The chapter 2 has a weightage of only 10 marks in your board exam, and chapter 1 has a weightage of 20 marks. So let's start the chapter 2, Introduction to SEO. So this chapter is only for the 12th science students. SEO chapter actually में commerce students के लिए included नहीं है. फर्स्ट चैप्टर साइंस स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉमर्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए भी था, बट इंट्रोडक्शन टू एसईओ ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है. कॉमर्स स्टूडेंट्स यू हैव सेकंड चैप्टर डिजिटल मार्केटिंग. सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन डिजिटल मार्केटिंग आल्सो. सो नाउ वी आर discussing the chapter introduction to SEO. So let's start. आते आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था you must have your notebook, your textbook and your writing material ready with you. मैं जो भी पॉइंट्स बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आपको तुरंत नोट करना है. फुल फॉर्म्स, देयर आर मेनी फुल फॉर्म्स, देयर आर मेनी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. प्लीज नोट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केयरफुली. So first, before starting the chapter, we must know the marks distribution, right? हमें marks distribution पता होना चाहिए. Like ये chapter का weightage क्या है? देखो total weightage होता है 10 marks as discussed already with you. Question number 1, fill the blanks में से दो questions पूछेंगे. As we all know, fill the blanks has 1 mark. So 2 marks means 2 questions have been asked here. True or false? Only 1 question, 1 mark. MCQ single correct answer, 2 marks means here there are 2 questions. MCQ 2 correct answer. When 2 correct answer comes, each question MCQ 2 correct answer में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा. मैच द फॉलोइंग, one pair you have to match and you will get the 1 marks. And my dear friends, here in chapter 1 we had coding, in chapter 2 we are going to have answer the following. So answer the following आपको रहेगा 4 मार्क्स के लिए from this chapter. In this chapter you have answer the following. As already mentioned, it's completely a theoretical chapter, so here there is answer the following. Okay, so this was the paper pattern. This was the weightage for the chapter Introduction to SEO. So let's start the chapter SEO. But before starting the chapter, directly we cannot, हम डायरेक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते. ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा एक बेसिक पॉइंट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द प्रीवियस चैप्टर? इसके पहला वाला चैप्टर क्या था? चैप्टर 1 एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग. सो एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग इज अ चैप्टर वेयर वी स्टडीड हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट. राइट, हमने चैप्टर 1 में क्या सीखा? वेबसाइट को कैसे बनाते हैं. अब चैप्टर 2 में हम सीखेंगे वेबसाइट को टॉप पे कैसे लेके आएंगे, या वेबसाइट को हायर रैंकिंग पे कैसे लेके आएंगे. दैट इज आवर मेन मोटो इन दिस चैप्टर. सो सी, सो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग. सो एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग में वी हैड लर्नड अबाउट द HTML5, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5. सो HTML5 सीखा. सो HTML5 को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट द वेब पेजेस and a collection of web pages. As we all know, collection of web pages is called as website. So in short, in chapter number 1 we had made website. तो आपको चैप्टर 1 में से वेबसाइट बनाना था. अब चैप्टर 2 में, अब अपने चैप्टर 2 में क्या है? ठीक है, अब चैप्टर 2, इन चैप्टर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू SEO. ठीक है, सो हमें SEO सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. व्हाट इज SEO? SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सो SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन होता क्या है. राइट, सो बेसिकली व्हाट इज सर्च इंजन? सो एज वी ऑल नो वी हैव द बेस्ट एग्जांपल. सो सर्च इंजन बोलते ही हमें किसका याद आता रहेगा? गूगल. Right, so Google is one of the
पॉपुलर सर्च इंजन अवेलेबल नाउअडेज, आज के डेट पे सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, राइट। सो गूगल के ऊपर अपना वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड, देखो मैं आपको बताऊं, अगर गूगल पे अपना वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड रहेगा तो गूगल हमारे वेबसाइट को हायर रैंकिंग देगा। कैसे रैंकिंग देगा? हायर रैंकिंग देगा। हायर रैंकिंग कहां पे देगा? इन सर्च रिजल्ट्स। कहां पे देगा? इन सर्च रिजल्ट्स। In search results, our website will get a higher ranking and a best ranking. कब? अगर अपना पेज ऑप्टिमाइज्ड रहा तो। एंड अगर समझो, अभी टिक का मतलब होता है ऑप्टिमाइज्ड। क्या हुआ अगर अपना पेज ऑप्टिमाइज नहीं रहा तो? सो अगर अपना पेज ऑप्टिमाइज नहीं रहा तो हमें क्या मिलेगा? लोअर रैंकिंग। गूगल क्या करेगा? हमें लोअर रैंक देगा एंड सर्च इंजन रिजल्ट्स पे अपना रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, right? So what is search engine optimization? Optimization is a technique by which we can develop a website and we can rank it higher on the search engine results. So search engine results के ऊपर हम अपने वेबसाइट को ना हायर रैंक करवा सकते हैं। अभी हायर रैंक क्यों करवाना है? What is the advantage of ranking high our website? So if your website is ranking higher, then automatically your website is going to become more and more popular. If your website is not at a higher rank, means if your website is at lower rank, then your website is not popular. Many visitors may not visit your website and definitely then there is a loss, right? So whenever you create a website, the website must be optimized. आपका वेबसाइट कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। अभी कैसे ऑप्टिमाइज करना है, क्या करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टुडेस लेक्चर। चलो अभी हमने क्या डिस्कस किया? फिर से छोटा सा रिवीजन। SEO, SEO stands for सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मतलब वेयर वी सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है माय डियर फ्रेंड्स? गूगल। सो गूगल इज द सर्च इंजन। तो सर्च इंजन पे अपना वेबसाइट कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड मींस व्हाट? इट इज अ टेक्निक बाय व्हिच we can design and develop our website to rank higher in the search engine results. So search engine results पे हमें अपने वेबसाइट को हायर रैंक करवाना है। हायर रैंक करने से अपना पेज क्या रहेगा? पॉपुलर रहेगा। एंड पॉपुलर रहेगा तो डेफिनेटली आवर वेबसाइट इज 100% ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया। सो इन चैप्टर नंबर 1, इन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर वी हैड एक्चुअली स्टडीड हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट एंड उसी वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके कहाँ पे रैंक कर रहे? हायर रैंक करवा रहे, सो दैट आवर वेबसाइट विल बिकम मोर पॉपुलर। ठीक है, वेबसाइट अगर टॉप पे रैंक करेगा तो इट विल मोर पॉपुलर। एंड सिंपल सी बात है ना माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर गूगल के ऊपर कोई कंटेंट सर्च करते हो, आप क्या करते हो? ऐसे नीचे जाके एकदम लास्ट ऑप्शन ओपन करते हो क्या? नहीं। व्हेनेवर वी सर्च एनीथिंग ऑन द गूगल, व्हाट वी डू? वी ओपन द फर्स्ट वेबसाइट और सेकंड वेबसाइट और थर्ड वेबसाइट। उससे नीचे तो बहुत रेयर जाते हैं हम लोग, राइट? सो फर्स्ट वेबसाइट एग्जैक्टली गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो आपको ज्यादा बेटर कौन दे सकता है? फर्स्ट वेबसाइट ही दे सकता है। फर्स्ट वेबसाइट कैसे कि आपको सब कुछ इतना परफेक्टली दे सकता है? बिकॉज आंसर सिंपल है। फर्स्ट वेबसाइट जो गूगल आपको सजेस्ट करता है दैट इज ऑप्टिमाइज्ड। वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्टिमाइज्ड। I hope so आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया why we are studying this chapter. So okay, so not only creating the website is important but उसको optimize रखना भी उतना ही important है, right? So आपको समझ में आ गया रहेगा what is SEO, right? So SEO stands for search engine optimization and what is search engine optimization अभी हमने थोड़ी देर पहले वो भी डिस्कस कर लिया है, right? So see introduction. SEO is a technique, okay? एक ऐसा टेक्निक, निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक क्या बोलते हैं इसको? निंजा टेक्निक है अपने पास। अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का निंजा टेक्निक है अपने पास SEO। एग्जाम में मत लिख देना निंजा टेक्निक, नहीं तो एग्जामिनर बोल देगा ये क्या है? निंजा टेक्निक, राइट? सो बस ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है? SEO इज अ टेक्निक, नॉट अ निंजा टेक्निक। SEO इज अ टेक्निक used for designing and developing। हम अपनी वेबसाइट को और डिजाइन कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट को और डेवलप कर सकते हैं। टू रैंक, वाई? क्यों करना है? क्यों करना है? डेवलप क्यों करना है? डिजाइन क्यों करना है? टू रैंक हाउ मच? हायर इन सर्च इंजन। सो सर्च इंजन पे लाइक गूगल पे कोई अपने वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ कंटेंट सर्च करेगा ना, अपना ही वेबसाइट दिखना चाहिए भाई। अपना वेबसाइट छोड़कर दूसरा वेबसाइट दिखना नहीं चाहिए उसको। मतलब ऐसे कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पेज को ऑप्टिमाइज रखना पड़ेगा, राइट?
अभी ऑप्टिमाइज रखने के दो टाइप्स है, हम एक तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या है। इफ वी वांट टू ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट, वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट ऑन पेज एंड वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट ऑफ पेज। हमें दोनों भी करना पड़ेगा, ऑन पेज भी करना पड़ेगा और ऑफ पेज भी करना पड़ेगा। सिर्फ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करके छोड़ दिया, काम नहीं चलेगा। आपको ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज भी करना पड़ेगा, ऑफ पेज भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो अब तक आपको ऑप्टिमाइजेशन क्या है ये समझ में आ चुका रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन क्यों करना है वो भी आपको समझ में आ चुका रहेगा। चलो, नाउ विल डिस्कस ऑन पेज एसईओ। सी, व्हेनेवर वी डू एनी चेंजेस टू डिजाइन एंड डेवलप आर वेबसाइट, ठीक है, हम जब भी कोई चेंजेस पेज के अंदर करते हैं, इनसाइड द कोडिंग, इनसाइड द वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर आप कोई चेंजेस करते हो, उसको हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज, वेबसाइट के बाहर, इफ यू आर गोइंग टू मेक एनी चेंजेस आउटसाइड द वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ पेज। देखो, ऑन मतलब पेज के अंदर, ऑफ मतलब पेज के बाहर। अभी ऑन पेज के एग्जांपल्स क्या बोल सकते हैं, लाइक वी हैव टू कीप अ गुड कंटेंट इन टाइटल टैग। अभी टाइटल टैग मतलब अपना कोडिंग का पार्ट है, सो वी हैव टू कीप अ गुड कंटेंट इन टाइटल टैग। मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, टाइटल का डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। एवरीबॉडी नोस टाइटल का डिस्क्रिप्शन कितना, देखो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, राइट। सो आपका टाइटल जो है ना, वो मैक्स टू मैक्स आपका 60 कैरेक्टर्स होना चाहिए, राइट। 60 कैरेक्टर्स आपका होना चाहिए टाइटल, मतलब आपके पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड आपका मेटा जो है ना, वो 70 to 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए, 70 to 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए टू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट, ठीक है। सो जब हम अभी देखो ना, टाइटल, मेटा, ये सब पेज के अंदर की बात है, राइट, कोडिंग के अंदर की बात है। सो व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ द वेबसाइट, एंड दैट कम्स अंडर द ऑन पेज एसईओ। सी, कंसर्न विद इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड to the end user, means when we make the changes inside the coding, that content will be displayed to the end user. Then what is off page? Off page का मतलब क्या है? Changes done outside the website. अभी वेबसाइट के बाहर क्या चेंज करेंगे, जैसे कि लिंक बिल्डिंग, लिंक पॉपुलैरिटी बढ़ाना, ठीक है, लिंक पॉपुलैरिटी, link exchange, right? We can also take the help of the link exchange, link popularity, creating or we can say less backlink. So these all are the examples of off-page SEO. मतलब पेज के बाहर आपको ये सब करना पड़ेगा, आपके लिंक बिल्ड करना पड़ेगा, मीन्स आपका URL को बिल्ड करना पड़ेगा, आपके लिंक को पॉपुलर रखना पड़ेगा, आपके लिंक एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब लिंक एक्सचेंज कम होना चाहिए, बैकलिंकिंग कम होना चाहिए। अगर ये सब चीजें फॉलो होता है तो आप बोल सकते हो आर वेबसाइट इज ऑप्टिमाइज्ड ऑफ पेज ऑल्सो। एंड अगर टाइटल, मेटा और भी कुछ पॉइंट्स है, ये सब चीजें अगर फॉलो होता है तो आप बोल सकते हो आर पेज इज ऑप्टिमाइज्ड इनसाइड ऑल्सो। सो वेबसाइट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड इनसाइड ऑल्सो, दैट मीन्स इनसाइड द कोडिंग, एंड आवर वेबसाइट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड आउटसाइड ऑल्सो, मीन्स उसका स्ट्रक्चर बोलो, उसका लिंक के ऊपर बोलो, उसके यूआरएल के ऊपर बोलो, उसके बैकलिंक के ऊपर बोलो, सो दैट ऑल कम्स अंडर द ऑफ पेज। सो ये दिस बोथ हैज टू बी डन, right my dear friends, both has to be done. So these are the types of SEO. So this question is mostly asked in the board exam. We'll discuss the question also. Question discuss करने से पहले objectives क्या क्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन यार बहुत सिंपल है, this question every time comes in the board exam. SEO stands for dash. So what is SEO, my dear friends? SEO stands for search engine optimization. SEO stands for search engine optimization. SEO is a subset of search engine marketing. Search engine marketing. So अपना search engine optimization अपने search engine marketing का एक subset होता है. Dash is a subset of a search engine marketing. वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है तो आंसर रहेगा भाई SEO. SEO इतना अगर लिख के आया ना तो इंप्रेशन थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा. In your fill in the blanks you can write SEO in bracket में full form भी लिख सकते हो. Search engine optimization ऐसे full form लिखा तो इंप्रेशन और अच्छा रहेगा. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट. डैश इज यूजफुल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ वेबसाइट. SEO ब्रैकेट में तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. डैश इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ वेबसाइट टू बी रैंक हाई इन सर्च इंजन रिजल्ट. डेफिनेटली आंसर इज SEO, ठीक है, ब्रैकेट में SEO. Dash is an online program or a software that helps users to search for information on the World Wide Web
www पे हम जब इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, सो कौन सा सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है या कौन सा प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम हमें हेल्प करता है? द आंसर इज search engine. So search engine is an online program or a software which helps us to exactly bring the website from the internet, that is www से अपना वेबसाइट अपने कंप्यूटर तक लाने का काम कौन करता है? सर्च इंजन. The best example of search engine present today is Google, right? So Google is a search engine. We have Bing, Microsoft Bing, वो भी एक सर्च इंजन है, बट पॉपुलर कौन है? गूगल है, ठीक है. सो अगर आपका पेज ऑप्टिमाइज रहेगा तो सारे सर्च इंजन के ऊपर उसका रैंकिंग ऑटोमेटिकली टॉप पे रहेगा. सो कोई भी सर्च इंजन, गूगल बोलो, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग बोलो, ये लोग वेबसाइट्स के रैंकिंग को कैसे डिसाइड करते हैं? These people decide the ranking of the website based on the optimization. The more the website is optimized, the higher will be the ranking. The less the page is optimized, the lower will be the ranking. So जितना ज़्यादा पेज आपका ऑप्टिमाइज रहेगा उतना ही आपका रैंकिंग बढ़ेगा, और जितना आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा उतना ही आपका पेज का रैंकिंग नीचे भी जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी क्रिएट अ वेबसाइट, आवर वेबसाइट मस्ट बी ऑप्टिमाइज्ड. अब आप बोलेंगे ऑप्टिमाइज कैसे करेगा? टेंशन मत लो, आगे आएगा. अभी के लिए कंसेप्ट समझो. ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? ये सब अभी सीख लो. एग्जैक्टली ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू सून. चलो, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो सी माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या था यार, मैंने आपको बोला ना 4 मार्क्स के लिए आंसर द फॉलोइंग है. सो देखो एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, ऐसे ही आएगा, और आपको मतलब मैं जो दिखा रहा हूँ इसके बाद कुछ नहीं आएगा, राइट. सो बस देखो, डिफाइन एसईओ. डिफाइन कर सकते हो ना यार एसईओ? कैसे लिखते हैं एग्जाम में? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग the website to rank higher in the search engine results. ऐसे अच्छे से डेफिनेशन लिखने का, राइट. अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. ऑन पेज, ऑफ पेज. When we want to make the changes inside the page, that is inside the coding, then we have to follow the on page SEO. When we want to make the changes outside the website, then that is off page SEO. Example दे सकते हैं, making the change inside the title tag, making the change inside the meta tag is on page SEO, and the title content should be up to 60 characters. The meta content should be up to 170 to 160 characters. लिखो बिंदास आंसर. अगर आपका कंटेंट रिच रहेगा, अगर आपका आंसर में ये पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स इस आंसर्स को मिलना ही चाहिए पेपर में, राइट. ऑफ पेज एसईओ. ऑफ पेज एसईओ इज नथिंग बट ऑप्टिमाइजेशन डन आउटसाइड द वेबसाइट. आउटसाइड द वेबसाइट मींस फॉर एग्जांपल लिंक बिल्डिंग, लिंक पॉपुलैरिटी, right, link exchange, etc. So these are the types of SEO. वही चीजें यहाँ पे लिख के भी दिया है. देखो अगर आपको पढ़ना है ये तो पढ़ लो. So हमने अभी जो डिस्कस किया है वही यहाँ पे लिख के भी दिया है. See, this includes provision of good content. On page मतलब क्या होता है? गुड कंटेंट होना चाहिए, गुड कीवर्ड्स होने चाहिए, मतलब उसके अंदर के वर्ड्स भी गुड होने चाहिए. गुड कीवर्ड सिलेक्शन. फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेबसाइट बनाया, आई एम गोइंग टू क्रिएट वेबसाइट रिगार्डिंग आईटी नोट्स. तो उसके अंदर आईटी नोट्स के बारे में ज्यादा कीवर्ड्स होने चाहिए, ज्यादा वर्ड ऐसे होने चाहिए, नोट्स, राइट. तो अपना पेज ऑप्टिमाइज रहेगा. मतलब मैंने बनाया वेबसाइट आईटी नोट्स के लिए, उसके अंदर नोट्स ये कीवर्ड ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, फॉल्स इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं वेबसाइट के अंदर, एंड द वेबसाइट विल नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड. Putting keywords on correct places, giving appropriate title at every page is very important, right? And then what is off, ठीक है, बाकी आप पढ़ लो. इस कंसर्न विद इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्ले टू द एंड यूजर. मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हो दैट इज डिस्प्ले टू द यूजर, एंड यूजर. ऑफ पेज इंक्लूड्स लिंक बिल्डिंग, इंक्रीजिंग लिंक पॉपुलैरिटी, राइट. लिंक बिल्डिंग, increasing link popularity by submitting open directories, search engines, link exchange, etc. ठीक है, ये याद रखना एग्जांपल्स, ठीक है. सो वेबसाइट रिलेशन मोस्टली कम्स इन ऑफ पेज एसईओ. चलो, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर कंफ्यूज होते हैं. एक्चुअली हमने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा दैट वाज टाइप्स ऑफ एसईओ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ आर देयर? 2 टाइप्स, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, we are discussing techniques. मतलब I have experience of 2 years for board paper checking. मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए बहुत बार देखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, टाइप्स में टेक्निक लिखते, टेक्निक में टाइप लिख के रख देते. सो कंफ्यूज नहीं होना, टाइप्स में 2 ही टाइप्स होता है, ऑन पेज, ऑफ पेज. टेक्निक में अपने पास 2 टेक्निक्स होते हैं, व्हाइट हैट
ब्लैक हैट, राइट? सो टेक्निक्स बोलते हैं, वी हैव ओनली टू टेक्निक्स, दैट इज व्हाइट हैट एसईओ एंड वी हैव ब्लैक हैट एसईओ। व्हाइट हैट ब्लैक हैट मतलब इसको टोपी पहनाने नहीं होता, व्हाइट हैट ब्लैक हैट मैं आपको बताता हूं क्या होता है। सो व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? सी पहले हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते थे, फिर हम लोग एग्जैक्टली पॉइंट पे जाएंगे। व्हाइट हैट एसईओ मतलब हमें ऑप्टिमाइजेशन तो करना पड़ेगा। हाँ, जब आप आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो लीगली, प्रॉपरली, जेन्युइनली, ऑनेस्टली, मतलब किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करते हुए आप आपका खुद का कंटेंट डालोगे, आप वेबसाइट अपने ओन वे से ऑप्टिमाइज करोगे, आपको जो सही लग रहा है उसको करेक्ट करोगे विद अ गुड ग्रामर एंड विद अ गुड सेंटेंसेस, प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंसेस रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट हैट एसईओ। समझा? ब्लैक हैट एसईओ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये हमेशा के लिए टिकेगा नहीं। थोड़ी दिन आपका पेज ऑप्टिमाइज रहेगा, आफ्टर सम टाइम और उसका मतलब उसका फिर से रैंकिंग लो हो सकता है। ब्लैक हैट में क्या करते हैं बेसिकली, वी आर गोइंग टू कॉपी सम अदर वेबसाइट कंटेंट, किसी दूसरे वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल देना, किसी दूसरे का इमेजेस कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल देना, किसी दूसरे का आइडिया कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल के उसको ऑप्टिमाइज करने की नाटक करना, उसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। बट माय डियर फ्रेंड्स, ब्लैक हैट एसईओ विल बी ऑप्टिमाइज्ड बट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट अगेन द रैंकिंग विल come down. So when we use black hat SEO, that means we are using duplicate content, copied content, irrelevant content, right? Images are not labeled, no proper title tag, no proper meta description. अगर ऐसे रहेगा तो उसको हम बोलते हैं black hat technique, right? And white hat technique के अंदर क्या रहेगा my dear friends? कंटेंट को improve करिए with your own content, with your genuine content, and the content is not a copied one. अगर ऐसे रहेगा तो उसको हम बोलते हैं white hat SEO। देखो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट इशू यहाँ पे इशू क्या है? This will be optimized only for temporary basis, but अगर आपने white hat SEO से ऑप्टिमाइज कर दिया तो आपका पेज हमेशा के लिए ऑप्टिमाइज रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है? So see, technique that search engine recommends as a good part of as a part of good design. So search engine भी हमें यही recommend करते हैं कि आप white hat से आपका पेज को ऑप्टिमाइज करो। Black hat technique used for optimizing the website are manipulative. Manipulative का मतलब क्या होता है? Copied content, duplicate content, irrelevant content. What is irrelevant? आपके टेक्स्ट में ये वर्ड बहुत बार आया है, irrelevant का मतलब क्या होता है? मैंने बनाया वेबसाइट IT नोट्स के लिए, बट मैंने उसके अंदर IT नोट्स की जगह पे मैंने कुछ इमेजेस, बस नेचर के इमेजेस ऐड करके रख दिया। हाँ, वेबसाइट का हेडिंग क्या बोलता है भाई? IT नोट्स, बट अंदर जाके देखा तो आपको मिल गई नेचर की इमेजेस, हमें क्या चाहिए था, क्या मिल गया, राइट? सो उसको बोलते हैं irrelevant कंटेंट। सो अगर आपके पास irrelevant कंटेंट रहेगा तो दैट इज ब्लैक हैट एसईओ। सो यूजर को हमें जो कंटेंट चाहिए वही कंटेंट प्रोवाइड करना है, अननेसेसरी कोई भी कंटेंट हमें प्रोवाइड करना नहीं है। सो ऐसे अपने पास दो टेक्निक्स हैं, व्हाइट हैट टेक्निक एंड ब्लैक हैट टेक्निक। सो दिस क्वेश्चन आल्सो कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। सी व्हाट आर डिफरेंट एसईओ टेक्निक्स? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड द बोर्ड एग्जाम, यू कैन सी हियर। ये एक्चुअली बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्च 2022, दिस इज आल्सो बीन आस्क्ड द ईयर मार्च 23, एंड आपके एग्जाम दैट इज मार्च 24 में भी आने का बहुत ज्यादा चांस है, राइट? व्हाट आर द डिफरेंट एसईओ टेक्निक्स? बेसिकली एसईओ के दो टाइप्स होते हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट। ऑप्टिमाइजेशन डन लीगली विद द प्रॉपर एंड रेलेवेंट कंटेंट इज कॉल्ड एज व्हाइट हैट। ऑप्टिमाइजेशन डन इल्लीगली विद द डुप्लीकेट कंटेंट और इररेलेवेंट कंटेंट, देन दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक हैट। सो इसके बीच का डिफरेंस पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है? इट कंटेन्स, मतलब व्हाइट हैट कंटेन्स प्रॉपर लेबल, प्रॉपर एंड वेल लेबल्ड इमेजेस, प्रॉपर और इमेजेस अपने लेबल्ड रहेंगे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। इट इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड कंप्लेंट HTML। हम HTML के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना पेज बनाएंगे, दैट इज स्टैंडर्ड कंप्लेंट HTML। बट ब्लैक हैट में क्या सीन है? टेक्निक दैट सर्च इंजन डज और डू नॉट अप्रूव। सो ये टेक्निक को सर्च इंजन अप्रूव नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, एंड दोस टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट आर कॉल्ड एज ब्लैक हैट। मतलब ऐसा टेक्निक जो आपका सर्च इंजन अप्रूव तो नहीं करेगा, बट आपने यूज किया है, उस टेक्निक को हम बोलेंगे ब्लैक हैट टेक्निक। इट मेनली कंटेन्स डुप्लीकेट कंटेंट। Such websites are mainly used to redirect users to another website and cause traffic. So क्या होता है यहाँ पे सीन?
अगर आप ब्लैक हैट टेक्निक यूज करते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा यूजर को रीडायरेक्ट किया जाता है। आपने भी बहुत बार नोटिस किया रहेगा, इंटरनेट के ऊपर जब आपको कोई कंटेंट ढूंढना है, आप गूगल के अंदर कोई वेबसाइट ओपन करते हो, राइट? फिर वो वेबसाइट में बोला रहता है क्लिक हियर, आप वहां पे क्लिक करते हो, इट टेक्स यू टू द अनदर पेज। उधर क्लिक करते हो, यू गो टू द थर्ड पेज, उधर से क्लिक करके आप फोर्थ पेज पे जाते हो, उधर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, सेवंथ पेज, मतलब आप ऐसे घूमते रहते हो, बट आपको जो कंटेंट चाहिए वो नहीं मिलेगा, आप बस घूमते रहोगे। तो इसको हम बोलते हैं रीडायरेक्टिंग द यूजर। जब यूजर को ऐसे हम घुमाते रहेंगे एक पेज से दूसरे पेज में, उसको हम बोलते हैं रीडायरेक्टिंग द यूजर। सो रीडायरेक्टिंग क्यों करते हैं यार? टू कॉज द ट्रैफिक। सो ट्रैफिक कॉज करने के लिए कुछ वेबसाइट्स में जानबूझ के रीडायरेक्ट किया जाता है, बट दैट इज अ ब्लैक हैट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो कि ज्यादातर यूज नहीं करना चाहिए, और गूगल उसको रेकमेंड करता भी नहीं है। मतलब गूगल मतलब सर्च इंजन उसको रेकमेंड नहीं करता, राइट? चलो नाउ मेन मुद्दे पे आते हैं। तब भी से हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन, बट एग्जैक्टली ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइजेशन में करना क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और एक बार रिपीट करता हूं, ऑप्टिमाइजेशन मतलब कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसको यूज करके अपने वेबसाइट को हम हायर रैंक करवा सकते हैं, बट एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली वहां पे क्या करना पड़ेगा? सी, सो ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट वी हैव टू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पेज स्ट्रक्चर, मतलब हमें पेज स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हमारे वेबसाइट के पेज को ऑप्टिमाइज रखना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि टाइटल। सो योर टाइटल शुड बी अप टू हाउ मेनी कैरेक्टर्स, हम भी थोड़ी देर में डिस्कस किया था, ठीक है? टाइटल कितना कैरेक्टर्स का होना चाहिए? 60 कैरेक्टर्स, ठीक है? सो 60 कैरेक्टर्स का आपका टाइटल होना चाहिए अगर आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है तो। इससे कम भी नहीं और इससे ज्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मैच हो सकता है, थोड़ा बहुत इसके रेंज में आ सकता है, बट ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आफ्टर दैट योर मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी, आपको जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसका कितना होना चाहिए? 70 to 160, राइट? सो योर मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी फ्रॉम 70 to 160 कैरेक्टर्स। अगर ये रेंज के अंदर अपना मेटा डिस्क्रिप्शन रहेगा, अभी मेटा डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द मेटा टैग। ये मेटा टैग होता क्या है? ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है, राइट? सो अपने पेज को डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम मेटा टैग का यूज करते हैं, राइट? सो मेटा डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? 70 to 160 कैरेक्टर्स। हेडिंग टैग्स मतलब वी नो टोटल वी हैव 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग, H1 to H6। अगर आपको आपके पेज को ऑप्टिमाइज करना है, अगर आपके पेज के स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज रखना है, तो आपको H1 से लेके H6 तक सारे हेडिंग के लेवल को यूज करना है, where H1 is the largest heading and H6 is the smallest heading, right? इमेजेस विद आल्ट एट्रीब्यूट। सो अपनी इमेज को, अपना जो भी इमेज रहेगा, अपनी इमेज को आल्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए। व्हाट इज आल्ट एट्रीब्यूट? आल्ट एट्रीब्यूट मतलब क्या? समझो एक इमेज फाइल है, इमेज फाइल के ऊपर जैसे मेरा माउस का पॉइंटर जाएगा, इमेज फाइल के ऊपर जैसे मेरा माउस का पॉइंटर जाएगा, तो दिस इमेज मस्ट गिव मी अ डिस्क्रिप्शन और दिस इमेज मस्ट गिव मी अ इंफॉर्मेशन मुझे मिलना चाहिए इमेज के बारे में। सो इसको हम बोलते हैं इमेज विद आल्ट एट्रीब्यूट। जैसे माउस पॉइंटर उस इमेज के ऊपर जाएगा, इमेज के ऊपर माउस पॉइंटर जाते हमें उस इमेज का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उस इमेज का इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसको बोलते हैं इमेज विद आल्ट एट्रीब्यूट। अगर ये सब रहा, टाइटल 60 कैरेक्टर्स रहेगा, मेटा 70 to 160 रहेगा, हेडिंग सारे हेडिंग्स रहेंगे, इमेज को आल्ट एट्रीब्यूट रहेगा, तो आपका स्ट्रक्चर हो गया ऑप्टिमाइज, आपका पेज का स्ट्रक्चर हो गया ऑप्टिमाइज बेस्ट। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट ये होना चाहिए, ये करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है? नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस हमें एसईओ कीवर्ड्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज एसईओ कीवर्ड्स? व्हेनेवर यू क्रिएट अ वेबसाइट, आप ये चीज याद रखो, आपने जो कंटेंट के लिए वेबसाइट बनाया है, उस कंटेंट का जितना ज्यादा कीवर्ड ऐड कर सकते हो, उतना ज्यादा कीवर्ड्स हमें ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने बनाया एक वेबसाइट फॉर आईटी नोट्स, सो उस वेबसाइट के अंदर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम ये नोट्स, ये वर्ड रिपीट होना चाहिए, नोट्स, लेटेस्ट नोट्स, नोट्स 2024, आईटी रिसेंट नोट्स, आईटी लेटेस्ट नोट्स, आईटी नोट्स 2024, ऐसे बहुत ज्यादा कीवर्ड्स रिपीट होना चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट। सो आपके वेबसाइट के अंदर आपके कंटेंट की रिगार्डिंग ज्यादा कीवर्ड्स रहा तो आपका पेज 100% ऑप्टिमाइज रहेगा। सो एसईओ कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू द developed website content. So whatever content you are working for, your website must have more and more keywords regarding or related to that content. So that is SEO keywords.
SEO social bookmarking. Now what is social bookmarking? Social bookmarking is a very powerful tool, my dear friends, in promoting a website. This question has been asked many times in a board exam. Dash is a powerful tool in promoting a website. Answer is social bookmarking. So what is social bookmarking? By using social bookmarking, we can actually bookmark the page. So bookmark means what? We can save the page for the future reference, and next time no need to remember the URL of the page, just open the bookmarks and we can get the page which we have saved. So bookmarking करना मतलब क्या? हम अपने पेज को सेव करके रख रहे हैं for the future reference. That is what is bookmarking. Then we have SEO, social media optimization. This is also a very important point, my dear friends. Search engine optimization, social media optimization. So what is social media optimization? So whenever we create a website, that website must be linked to the social media. फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड माई वेबसाइट रिगार्डिंग IT नोट्स. सो मेरे वेबसाइट के लास्ट में ऐसे इंस्टाग्राम का लोगो दिखना चाहिए, व्हाट्सएप का लोगो दिखना चाहिए, यूट्यूब का लोगो दिखना चाहिए, ट्विटर का लोगो दिखना चाहिए. सो व्हेन एनी user or when any person clicks on the YouTube logo, automatically that person should go to my official YouTube page. When any person at the end of my website clicks on the Instagram logo, automatically the person will go to my Instagram page, right? So by this we can increase the number of visitors. So Facebook, Instagram ऐसे सोशल मीडिया से अपने पास ज्यादा विजिटर्स आ सकते हैं. सो अगर हमने सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट को लिंक किया तो ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ विजिटर्स विल कम फ्रॉम द सोशल मीडिया टू आवर वेबसाइट. तो डेफिनेटली अपना मेन मोटो, अपना मेन एम तो वही था ना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ विजिटर्स. तो बढ़ गई विजिटर्स बाय यूजिंग सोशल मीडिया. सो व्हेनेवर यू क्रिएट अ वेबसाइट, योर वेबसाइट मस्ट बी लिंक्ड टू द सोशल मीडिया. सो बाय यूजिंग सोशल मीडिया we can actually make our website interactive, communicative, ज़्यादा communication कर सकते हैं, right? So deals with enhancing websites, making using interactive communities like Facebook. So Facebook में कैसे communities होते हैं, groups होते हैं, channels होते हैं. So ये channels में से जब हम अपने information को provide करेंगे, many people can reach out to our website in just one single click. So अपने page के अंदर social media optimization भी होना चाहिए to increase the number of visitors. चलो, now we come to SEO backlinks. So what is SEO backlinks? Basically backlink क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है. Dash are the links on the website that when clicked takes the user to another site. मतलब बैकलिंक्स जितना कम हो सके उतना कम बैकलिंक्स हमें रखना है. बैकलिंक का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा, यूजर इज गोइंग टू गो टू सम अनदर पेज. सो बैकलिंक जितना कम हो सके उतना कम रहेगा तो अपना पेज और अच्छे से ऑप्टिमाइज रहेगा. ऐसा ना ना यूजर कोई कंटेंट को ढूंढने अपने वेबसाइट के अंदर आ गया और वो क्लिक कर रहा है, इज गोइंग टू द न्यू पेज, क्लिक कर रहा है, इज गोइंग टू द न्यू पेज, क्लिक कर रहा है, इज गोइंग टू द न्यू पेज. ऐसे अगर यूजर न्यू पेज पे ऊपर जाते रहेगा तो उसको हम बोलेंगे the user is been redirected, and if the user is been redirected then our page is not optimized. And we come to the last point, other factors. Some other factors also है, जैसे कि स्पीड ऑफ द वेबसाइट. सिंपल सी बात है, वेबसाइट का स्पीड कैसा होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए तो अच्छा लगेगा. अगर वेबसाइट का स्पीड स्लो है, ऐसे घूम रहा है, बफरिंग गोल घूम रहा है, तो डेफिनेटली द यूजर विल नॉट लाइक, द विजिटर्स विल नॉट लाइक, एंड नेक्स्ट टाइम दे विल नोबडी इज गोइंग टू विजिट वेबसाइट. सो आपका वेबसाइट का स्पीड अच्छा होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए. यार मोबाइल फ्रेंडली मतलब आपका वेबसाइट जो लैपटॉप पे या पीसी पे जैसे दिख रहा है वैसे ही सेम मोबाइल पे दिखना चाहिए. हम भी कितने बार इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार ये वेबसाइट लैपटॉप पे कितने अच्छे से ओपन होता है बट मोबाइल फोन में सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मोबाइल फोन ओपन ही नहीं हो रहा. तो ऐसे केस में अपना ऑप्टिमाइजेशन का लेवल कम हो सकता है और अपना रैंकिंग भी कम हो सकता है. सो आपका वेबसाइट जो है एक्चुअली मोबाइल फ्रेंडली ऑल्सो, मीन इट शुड बी फ्रेंडली, इट शुड बी फ्रेंड विद द मोबाइल ऑल्सो. लाइक मोबाइल में भी अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, उसके सारे फीचर्स एक्सेस करने आना चाहिए. Creating robot.txt. Now robot.txt is a Google spider. So robot.txt क्या होता है ना, गूगल का स्पाइडर होता है. सो हम जब गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं ना, एक्चुअली गूगल के स्पाइडर क्या करते हैं, टाइटल और मेटा में जाके एग्जैक्टली ढूंढते हैं वो कंटेंट मैच हो रहा है. जैसे कि मैंने अगर गूगल पे सर्च किया IT नोट्स, तो गूगल स्पाइडर क्या करेगा, ये कंटेंट IT नोट्स को हर एक वेबसाइट के, मतलब जो कॉमन वेबसाइट है उसके टाइटल और मेटा से कंपेयर करने की कोशिश करेगा कि वेदर यूजर ने जो सर्च किया है, यूजर ने जो सर्च किया है और हम जो वेबसाइट में देख रहे हैं वो मैच हो रहा है कि नहीं. आपका गूगल स्पाइडर कभी वेबसाइट के अंदर जाके देखेगा नहीं कि क्या है क्या नहीं है. सो गूगल बॉट स्पाइडर इज जस्ट गोइंग टू रेफर द टाइटल एंड मेटा. सो योर टाइटल एंड मेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इफ द टाइटल एंड मेटा इज कंटेनिंग द गुड कीवर्ड्स, इफ योर टाइटल एंड मेटा इज हैविंग द proper characters, then definitely your page will be optimized because Google will definitely refer your page if valid content and proper content is there in the title or meta.
ठीक है। सो ये सब करने से, ये सारी चीजें करने से हम अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड कोई भी वेबसाइट आप बनाते हो, यू मस्ट फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स टू मेक इट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज क्यों करना है भाई? क्यों करना है ऑप्टिमाइज? ऑप्टिमाइज नहीं किया तो क्या फायदा? ऑप्टिमाइज क्यों करना है? सो दैट वी कैन गेट अ गुड रैंकिंग इन द सर्च इंजन रिजल्ट्स। व्हेन वी गेट द गुड रैंकिंग, ऑटोमेटिकली आवर वेबसाइट विल बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। ओके, yes, so these are some questions which are asked in the board exam. हाँ, यहाँ पे और भी एक पॉइंट था, ये एक्चुअली वहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया मैं आपको बस लिख के दिखाता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त आपको 3-4 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, मतलब ये भी चीज़ होना चाहिए। You must note these things. Whenever you start your coding, it should always start like this: doc type HTML. Whenever you start a coding, your coding should start like this: doc type HTML. Doc type HTML का मतलब होता है document type HTML. When we give document type HTML, automatically this indicates we are starting with HTML5. सेकेंड चीज जो होता है आपकी वेबसाइट के अंदर, दैट इज एक तो होना चाहिए डॉक टाइप HTML. आफ्टर दैट आपके जो टैग्स है, सिंगुलर टैग, स्पेशली सिंगुलर टैग्स, ठीक है, सिंगुलर टैग्स को हम ऐसे बोलते हैं, एम्प्टी टैग्स से बोला जाता है। सिंगुलर टैग्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी टैग्स। सो ये सिंगुलर टैग्स है, एम्प्टी टैग है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इमेज टैग, जैसे कि ब्रेक टैग, इनको हम कभी क्लोज नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट आर सिंगुलर टैग्स? वी ऑल नो इन HTML देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग. One is called as a container tag and one is called as a singular or empty tag. So container tags are the tags which can be opened and which can be closed, but singular tag or empty tags are the tags which can only be opened, that cannot be closed. So जो भी singular tags है ना, उनको close नहीं कर सकते, but उन्हें ऐसे छोड़ना नहीं है, उन्हें क्या करना है? self enclose करना है। उन्हें कैसे क्या करना है? self enclose ऐसे करते हैं, image slash, इसका मतलब होता है self enclose, ठीक है, image slash, ब्रेक को कैसे self enclose करेंगे? br slash। जो भी टैग्स को हम क्लोज नहीं कर सकते उसे हमें सेल्फ एनक्लोज करना पड़ेगा। ये करने से अपना वेबसाइट ऑप्टिमाइज बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ टैग्स। ऑर्डर ऑफ टैग्स भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले वी नो वी ओपन द HTML टैग। सबसे पहले हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? HTML लिखते हैं, राइट? आफ्टर HTML देन वी राइट द हेड, देन वी राइट द टाइटल, राइट? अभी ये ऑर्डर को पता चल गया ऑलमोस्ट, देन वी ओपन द बॉडी टैग, राइट? सो ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो ये ऑर्डर ऑफ टैग्स फॉलो होना चाहिए। एंड रिमेंबर, the tag which is opened last has to be closed first. So जो टैग लास्ट में ओपन होगा वो पहले क्लोज होना चाहिए, ठीक है? सो ये सब चीजें फॉलो होना चाहिए, ठीक है? चलो, सो HTML programs should always start with doc type HTML, means document type HTML. Singular tag should be self enclosed. जो भी singular tags है उनको क्लोज तो नहीं कर सकते, but we can self enclose. One of the optimizing factor to improve images को improve करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? alt attribute को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? alt attribute को ऐड कर सकते हैं। By using the alt attribute we can actually improve the image optimization factor. Image tag with dash attribute also contributes in optimization. Alt attribute, dash tag with alt attribute, alt attribute आ गया और tag आ गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा img tag, मतलब image tag. Dash is the first thing that user notices in search results while Google for search. मतलब सबसे पहले चीज हम क्या सर्च करते हैं? टाइटल, राइट? सो टाइटल शुड बी प्रॉपर, टाइटल शुड बी आपको 60 कैरेक्टर्स, दैट शुड बी ओरिजिनल कंटेंट. The title content should be up to 60 characters. Meta description should boost your dash SEO. Meta से हम लोग क्या कर सकते हैं? On page. Meta का आपका कोडिंग होता है ना, पेज के अंदर होता है। सो हम जब भी कोई चेंजेस पेज के अंदर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन पेज SEO. That is called as on page SEO. Meta description should be up to 70 to 160 characters, right? 70 to 160 characters. Meta description should be dash and 160, 70 and 160. So like these questions are asked in your board exams. So these are some answer the following. देखो my dear friends, answer the followings are very important, and answer the followings from this chapter we get the answer the following. Explain in short SEO keyword search. अभी SEO keywords क्या होता है? SEO keywords are the words and phrases
added inside the website to improve the optimization. अगर आपको आपके वेबसाइट के लिए कोई कीवर्ड्स नहीं मिल रहा है ना, आप हेल्प ले सकते हो. किसका हेल्प ले सकते हो? जैसे कि आपके पास ऑनलाइन कीवर्ड प्लानर मिलता है, जैसे कि गूगल एडवर्ड्स keyword planner. Google AdWords keyword planner is a software which is exactly going to help you like what keywords can be added inside a website to make it more optimized, right? So ये सब चीजें हमें फॉलो करना पड़ेगा. Explain SEO social media optimization. We all know when we connect our web page to the social media, automatically the number of visitors are going to increase, and when the number of visitors are going to increase, our website will be more and more popular. SEO backlinks. The number of backlinks. सबसे पहले backlink क्या होता है वो explain दो. Backlinks are the link which when clicked takes the user to the another page or another site. So number of backlinks should be less as much as possible, because once the user comes to our page, user should not redirect more. User के साथ redirection ज़्यादा होना नहीं चाहिए, right? So these are some points. चलो, and we come to the last topic of this chapter, that is SEO audit. अभी हमने डिस्कस किया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बट कैसे क्या एनालाइज करेंगे कि अपना पेज सच्ची मतलब कैसे क्या एनालाइज करेंगे कि हमारे पेज को सच्ची में ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है कि नहीं. How to just know whether our web page require optimization or not. So for that purpose we can do SEO audit. SEO audit कैसे करना है मैं आपको बताऊं. So this is a screenshot from a textbook which I have added. अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल में ये सब किया रहेगा. SEO ऑडिट कैसे करते हैं, बेसिकली आपको ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.seooptimer.com. So seooptimer.com. After going to this website, you have to enter the URL, that is uniform resource locator, that is address of the website, and then you can get the results. So जब आपको रिजल्ट्स मिलेगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑडिट. जब आपको आपकी वेबसाइट का रिजल्ट्स मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट. सो लाइक दिस यू कैन डू द एसईओ ऑडिट. सो अभी समझो ये एक्चुअल में इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूआरएल एंटर कर दिया है और दिस इज द रिजल्ट. सो ये आपको जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये आपका टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट है. सो जब आप रिजल्ट्स देखोगे ना तो आपको रिजल्ट्स ऐसे मिलेगा. कोई भी वेबसाइट, आई डोंट नो व्हिच वेबसाइट इज दिस. सो यहाँ पे कोई वेबसाइट को हमने ऑप्टिमाइज किया है. सो वो देखो वेबसाइट दिखने में ऐसे दिखता है, द वेबसाइट लुक लाइक दिस, एंड दीज आर द पॉइंट्स. Like, and here they have written something, your page could be better. देखो अपने पेज में क्या क्या गड़बड़िया है, मतलब what is गड़बड़, all the गड़बड़s are mentioned here. So your page could be more better. So आपके पेज को आप और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो. How? You have 16 improvements. When we click on these improvements, our SEO audit is going to exactly tell us what improvements can be done, and after improving those points, our website will be optimized. Right? So SEO, we have got the B grade, means यहाँ पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा. More better grade is expected. We require A grade or we require A plus grade. These grades are expected, right? D मतलब very bad. किसको भी D मिला? यूजेबिलिटी. यूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपका वेबसाइट आपके लैपटॉप पे एक अलग वे में यूज हो रहा है और आपका वेबसाइट मोबाइल फोन पे एक अलग वे में यूज हो रहा है. तो यूजेबिलिटी का कंसर्न होना नहीं चाहिए, लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो, वेबसाइट सेम चलना चाहिए दोनों जगह पे. बट यहाँ पे उनको डी ग्रेड मिला है बिकॉज ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है. परफॉर्मेंस थोड़ा और बेटर हो सकता है. अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस ए वगैरह आ गया तो परफॉर्मेंस और थोड़ा बेटर हो सकता है. सोशल को तो बहुत बैड ग्रेड मिला, दैट इज एफ ग्रेड. एफ ग्रेड मींस वेरी वेरी बैड, वेरी पुअर. सोशल को इतना पुअर ग्रेड क्यों मिला? बिकॉज दिस वेबसाइट, यहाँ पे जो भी वेबसाइट है, that website is not connected with any of the social media. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई वेबसाइट को हम सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकता है. whenever we connect the website to the social media, definitely more number of visitors will be coming to our website by social media, right? So social media को कनेक्ट होना आपका पेज बहुत जरूरी है. उसके बाद सिक्योरिटी. सो फॉर सिक्योरिटी दे हैव गॉट A प्लस ग्रेड. सो A प्लस ग्रेड मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा. सिक्योरिटी के मामले में ये वेबसाइट बहुत अच्छा काम कर रहा है. मतलब दिस वेबसाइट इज 100% सेफ, दिस वेबसाइट इज 100% सिक्योर. इट इज यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, DNS, DHCP. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करने की वजह से इनको मिला है A प्लस ग्रेड. सो व्हेनेवर योर वेबसाइट इज 100% safe and secure, for website you are going to get a good grade. So this site has got the A plus grade, means good. So देखो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा हमारे वेबसाइट के अंदर क्या कमियां हैं, what improvements can be done. How? ये सब हमें कैसे पता चला? By doing the SEO audit. How to do the SEO audit? By going to this website, entering the URL, and we can get the results of the audit. Right? चलो, सो और एक स्लाइड रहेगा इसमें. हाँ, ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, टाइटल टैग. यहाँ पे हमने टाइटल टैग तो दिया ही है,
Here we have given the title tag, but see title tag उसका लेंथ कितना यहाँ पे आपको बता दो. Here it is written 85. But my dear friends, everybody knows what is the length of title tag. How many characters can be included? How many characters can be included in the title tag? Everybody knows 60. कितना होता है 60. But यहाँ पे कितना है 85. तो ये ज्यादा हो गया ना, ये ज्यादा हो गया ना. इसके लिए यहाँ पे देखो उनको क्रॉस मिला. ठीक है, मतलब ये पॉइंट के ऊपर हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, टाइटल के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा. मेटा डिस्क्रिप्शन बोलो जल्दी. मेटा डिस्क्रिप्शन का अपना रेंज क्या होता है? 70 to 160. अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना दिया? 98 दिया है. यू कैन रेफर ए टेक्स्ट बुक. अगर आपको दिखाई नहीं देता रहेगा नंबर, यू कैन रेफर ए टेक्स्ट बुक. सो हियर इट इज गिवन 98 मतलब ये रेंज के अंदर आ गया. सो यहाँ पे हमें मिल गया टिक मार्क. समझ रहे हो? सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? टिक मार्क मिल गया. सो 98 मतलब मेटा का एग्जैक्ट लेंथ मैच हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो राइट हेडिंग टैग्स मतलब यहाँ पे H1 से लेके H6 तक. H1 से लेके H6 तक we are using all the levels of headings. So here we have got the tick mark for heading. राइट, so जहां पे आपको टिक मिला वहां पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है. जहां पे आपको ऐसे रेड कलर पे क्रॉस दिख रहा है मींस दैट एरिया हैज टू बी वर्कआउट. वो क्रॉस निकालना पड़ेगा, वहां पे टिक मार्क लाना पड़ेगा. अगर आपने ऐसे आपके पेज के अंदर आपने ऐसे इंप्रूवमेंट्स किया, दैट मींस योर वेब पेज इज ऑप्टिमाइज्ड. सो इन दिस वे माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन एग्जैक्टली ऑडिट एंड वी कैन ऑप्टिमाइज द वेबसाइट. सो हियर वी कम टू द एंड of the chapter, introduction to SEO. So in this one short lecture we have completed the full chapter in detail. We have not missed out any point. We have literally covered each and every point which is there in a textbook. Now in the description below of this video I am going to add a PDF where all the questions, all the important questions will be there which are previously asked in the board exam. So this is actually a scanned part of my TPS which I will be uploading in the description part. So आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको एक पीडीएफ मिलेगा. अभी क्या करने का, जस्ट आपने वन शॉट रिवीजन सुना है, तुरंत क्या करना है, आपके पास टीपीएस रहेगा तो टीपीएस ओपन करो, टीपीएस नहीं रहेगा तो ये पीडीएफ ओपन करो. पीडीएफ ओपन करके तुरंत उसका रिवीजन कंप्लीट कर लो. देख लो एक बार बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो. बिफोर रिवाइजिंग दैट क्वेश्चंस वंस रीड योर टेक्स्ट बुक, दैट विल हेल्प अ लॉट. सो माय डियर फ्रेंड्स, we have completed the second chapter, that is introduction to SEO. In the next video we are going to start the third chapter, that is advanced JavaScript. So thank you for joining with us. I hope so everybody will practice all the questions given in the PDF. ठीक है, चलो bye.